Today I am going to discuss the questions of NCERT chapter motion, exercise question, that is question number 7, question number 8, question number 9 and question number 10. In question number 7, it is given that a ball is dropped from a height 20 meter. Suppose this is a boy and he is dropping a ball. This is a ball and it is dropped from certain height and the height is given as 20 meter. Now as he dropped a ball, whenever anything is dropped, that time take initial velocity 0. There is a difference between dropping a ball and throwing a ball. When anything is thrown, that time the initial velocity is not 0. But when anything is dropped, that time initial velocity you have to take 0. Simple word में देख सकते हो आप, इसे मैं drop कर रहा हूँ, मतलब मैं इसे छोड़ दिया. So initially it is in the state of rest, okay, and it has initial velocity 0. But now if I throw this object, okay, this marker, इसे मैं throw कर रहा हूँ, तो ये देखो, ये ऐसे फेंका, तो जब मैं फेंक रहा हूँ, that time it has some velocity. That's why when a object is thrown, that time velocity is not 0. Which velocity? U, and U is called initial velocity. What is U? Initial velocity. What is V? What is V? V is final velocity. Now as the ball is dropped, when it is dropped, that time velocity goes on increasing, and whenever the velocity goes on increasing, that time you have to take acceleration as positive, because final velocity is greater than the initial velocity, means acceleration is positive. That's why you have to take acceleration positive in whenever object is dropped or when object moves in downward direction with the effect of gravity. It is in gravitation chapter, I will explain everything. This is also a straight line motion. This is also vertical motion, but the motion is in straight line. Okay, so acceleration is also given, U is also given. You have to find V. There is time is not given, so you cannot use time equation. Here you can see acceleration is constant, and whenever acceleration is constant, that time you can use the kinematic equation. Why I am using this kinematic equation? In this equation there is no time, means there is no time, a physical quantity present in, means given in this question. Time is not given. That's why I have to use this formula. S is equal to ut plus half at square. In that equation also time is given. So we cannot use, because we have to find, there will be a two variable if we use S is equal to ut plus half at square. In this equation we can use this equation also. S is given, that is height. A is also given 10, and time is not given. So you can find time with this equation, and again then you can use the formula V is equal to U plus AT. But this is simple. First you use this formula, because this is simple, because in this equation two things, everything is given, only one variable is there, that is final velocity. V को क्या कहते हैं? Final velocity. Final velocity is missing and initial velocity is 0. To A, S, what is S? Vertical displacement. In place of S you can write H. Okay, आप यहाँ पर H लिख सकते हो. So I will put all the values. Okay, then what will the equation become? V square is equal to 0 square plus 2. A is how much? 10, and S is how much? 20 meter. All are in SI unit, meter per second square. So there is no need to change any physical quantity. Okay, so now you put and you comment me the answer, you solve it. Similarly you have to find the time taken by this ball to hit this ground. Means what is this V? V is the final velocity attained by ball. Listen to my word. V is the final velocity attained by the ball when it is dropped. जब मैं इसे छोड़ रहा हूं तो ये किस वेलोसिटी से इस ऑब्जेक्ट सरफेस को हिट कर रहा है, दैट वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी. शॉर्टकट याद रखना, ये जो हिट करेगा ना फाइनल, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल बिकम एट रेस्ट, बट
at what velocity it hit the ground, that velocity is what you simply remember this formula, root under 2gh. Simple formula. Here also you see, because it is dropped, so u become 0, so equation become v is equal, and in place of s what you can write, h, so the equation become v square is equal to 2gh, therefore v is equal to root under 2gh. This is the simple formula which you can use for finding the velocity with which it hit the ground. Ball hit the ground. Now you have to find the time, how much time it take to reach the ground. So time you have to find. You can use simple formula, v is equal to u plus at. Final velocity you can easily find final velocity. Now put everything and comment with the answer of these two things. Okay, now you copy it and comment with the answer. Okay, now in this question number 8, what is given? Question number 8, a graph is given between speed time graph is given, means any object whose speed time graph is given, and the graph is like that. You can see in the diagram also in this question. Okay, now what you have to find? You have to find the how much this actually कोई कार ट्रेवल कर रहा है और उसकी स्पीड टाइम ग्राफ दी गई है. कोई भी कार ट्रेवल कर रही है और उसकी स्पीड और टाइम, मतलब तुम कार पे बैठे हो और तुम टाइम को नोट करते जा रहे हो, स्पीड को नोट करते जा रहे हो. तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, स्पीड इंक्रीज करते जा रहा है. तो तुमने क्या किया, टाइम और स्पीड की वैल्यू से, मतलब 5-5 सेकंड के इंटरवल में तुमने देखा कि पापा कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, तो उस इंटरवल को यूज करके ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है कि स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है. नाउ यू हैव टू फाइंड हाउ फार द कार ट्रेवल इन 4 सेकेंड, शेड द एरिया. अब देखो, ये जो स्पीड बढ़ रही है ना, ये लीनियर नहीं बढ़ रही है, दिस इज कर्व. ये एक कर्व बना हुआ है, ठीक है, ये एक कर्व है. सो यू कैन नॉट, एंड यू नो द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, क्योंकि एरिया क्या होता है बताए थे आपको थ्योरी लेक्चर में, है ना. एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स distance. I already discussed this thing. If you have not watched, please go to the description of this video. You will find all the video lecture of chapter motion. One playlist is there. You will get everything. And if you find any difficulty, you comment me or message me, text me, then I will solve your doubt. Okay. So in this question, we have to find the area under speed time graph. तो आपको 4 सेकेंड तक में कितना एरिया कवर हो रहा है, ये एरिया कवर हो रहा है, ये एरिया कितना है ये निकालना है. ठीक है, और ये एरिया हमको क्या देगा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स मीटर पर सेकेंड, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. दिस विल गिव्स यू मीटर. एंड व्हाट इज मीटर? मीटर इज अ यूनिट फिजिकल क्वांटिटी. which physical, sorry, meter is a unit of a physical quantity. which physical quantity? Here I am taking speed. so speed time graph से बनता है distance, and velocity time graph से बनता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या बनता है, कमेंट करो. ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ से क्या बन गया, डिस्टेंस, और वेलोसिटी से आपको कमेंट करना है. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से क्या बनेगा, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ या स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है. ओके, लेट्स सी हाउ मेनी कैन कमेंट. नाउ how to find this area? If this is a triangle, then you can directly use half into base into height. But this is not a triangle. This is not an sector also, क्योंकि ये लेंथ 4 है और ये लेंथ 6 है. तो ये अगर 4 होता, ये 4 होता, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज कर लेते. बट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व पार्ट. ओके, ये पूरी पार्ट की हमको एरिया निकालनी है. कैसे निकालेंगे? स्ट्रेट लाइन लेकर के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बहुत सारे बुक में बना दिया गया है, बट जो एक्चुअल है इसका आप कैलकुलस में हायर सेक्शन में पढ़ोगे, वो अलग मेथड एक होता है जो आप हायर लेवल में पढ़ोगे उससे भी निकाला जा सकता है. इन क्लास 9th स्टैंडर्ड एक और मेथड है. आप देखो क्वेश्चन में, आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में देखो क्या ग्राफ दिया गया है. ग्राफ में बॉक्सेस बने हुए हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन में, देखो ग्राफ है ना, ऐसे करके बॉक्स बने हुए हैं. इस तरह का कई बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पर देखो आप बॉक्स. ठीक है, तो वो मैंने यहाँ लिखा है कि 5 स्क्वायर एक्स एक्सिस में 5 स्क्वायर जब बन रहा है, 5 बॉक्स स्क्वायर बॉक्स बन रहा है, वो कितना सेकंड बता रहा है, 2 सेकंड.
5 स्क्वायर बॉक्स बता रहा है, गिव्स द वैल्यू ऑफ 2 सेकेंड ऑन एक्स एक्सिस में टाइम है। तो एक स्क्वायर बॉक्स की कितनी लेंथ होगी, मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी एक स्क्वायर बॉक्स की, कई स्क्वायर बॉक्स इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना, ये कई स्क्वायर बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना ऐसे करके। तो एक का बॉक्स का हम एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि इसके अंदर कई बॉक्स है ना, ऐसे करके आप देख लो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है कई बॉक्सेस है। तो आप एक बॉक्स का एरिया निकाल दो और उसको फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस से काउंट, कितने नंबर ऑफ बॉक्स होंगे उसे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक बॉक्स का एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया निकालने के लिए ये लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए। तो ये लेंथ कितना है, तो एक 5 बॉक्स से 5 स्क्वायर बॉक्स से बनता है 2 सेकेंड। तो एक स्क्वायर एक्स से कितना बनेगा, एक्स एक्सिस में 2/5 सेकेंड। तो इस साइड की इसकी, जैसे एक स्क्वायर बॉक्स अगर मैं बनाता हूँ, एक बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर कई है, आपको काउंट करना होगा, ठीक है। एक स्क्वायर बॉक्स अगर मैं बनाता हूँ तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, ये लेंथ आपकी है 2/5 सेकेंड। एंड हाउ टू फाइंड दिस वाई लेंथ, तो वाई लेंथ में क्या दिया गया है, देखो मैंने क्या लिखा है, आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो डायग्राम में, 3 स्क्वायर ऑन वाई एक्सिस, 3 स्क्वायर बॉक्स, एक स्क्वायर बॉक्स दूसरा है, ये तीसरा है, तो 3 स्क्वायर बॉक्स से कितना बन रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक स्क्वायर बॉक्स से कितना बनेगा 2/3, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 2/3। नाउ हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द 1 स्क्वायर बॉक्स, तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर बॉक्स क्या होगा बताओ, बहुत ही सिंपल है, एरिया क्या होता है L इंटू बी। तो आप एरिया इसका एक स्क्वायर बॉक्स का निकालो, 1 स्क्वायर, दिमाग लगाओ, बिना दिमाग लगाए कुछ नहीं होता है, ठीक है। 1 एरिया ऑफ 1 स्क्वायर बॉक्स आप निकालो, कितना होगा 2 इंटू 2 दैट इज 4, या डायरेक्टली आप लिख सकते हो, सिर्फ कॉपी पेस्ट मत किया करो, है ना, ब्रेन, भगवान ने इतना अच्छा ब्रेन दिया तो उसका यूज भी करना है। सो 2 इंटू 2 4 एंड 5 इंटू 3 15, ठीक है, ये हमें एक का आया, ठीक है। अब एरिया हमको क्या देगा, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, इट विल गिव्स अस मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, यानी ये जो दे रहा है 14 मीटर दे रहा है हमें, ठीक है ना, 14 मीटर दे रहा है। तो ऐसे करके आपको काउंट करना है यहाँ पर कि कितने बॉक्स है। बॉक्स को कैसे काउंट करना है मैं उसका ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। ये एक कंप्लीट बॉक्स है, अगर मान लो ऐसे करके कर्व पास हो रही है तो हाफ पार्ट कवर किया तो हाफ लेना, अगर ऐसे करके कवर हो रही है, ऐसे करके ये पार्ट है, तो आप थोड़ा अपना दिमाग लगाना, काउंट करना। टोटल 63 से 65 बॉक्स होंगे, आप चेक करना, फिर उसे इससे मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द एरिया अंडर दिस कर्व, एंड एरिया अंडर दिस कर्व गिव्स द वैल्यू ऑफ व्हाट, एरिया अंडर दिस कर्व गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो आप इससे निकाल लोगे, आपको शेडेड करना था एरिया पार्ट को, तो ये पार्ट को आप शेड कर देना, ठीक है, अच्छे से पेंसिल से शेड कर देना ग्राफ पेपर पे। Now, which part represent the uniform motion? Uniform motion means speed is constant. Uniform means क्या होता है? Uniform means constant. Which quantity is constant? Speed is constant. So you see where speed is constant. In which time interval? देखो स्पीड तो बढ़ते जा रही है, 6 सेकंड तक बढ़ते जा रही है, फिर आफ्टर 6 सेकंड, 6 to 10 सेकंड स्पीड इज कांस्टेंट, दैट इज ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है। 6 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड तक, दैट इज ए बी पार्ट में स्पीड क्या आ रही है, इन बिटवीन टाइम इंटरवल 6 सेकंड टू 10 सेकंड द स्पीड इज कांस्टेंट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, you use your mind and solve this question. Okay, if you have any doubt you comment me, again I will discuss on this question. First you try, okay, copy it. In this question, question number 9 of NCERT, okay, in this question suppose any object, any body, okay, any body is throwing a stone, or not throwing, it is, he dropped one stone. So during that time when he dropped the stone, that time velocity what we have to take, we have to take initial velocity 0. Whenever any object is dropped from any certain height, that time suppose I am dropping this marker, when I am dropping this object marker, okay, that time the initial velocity is 0. Means when I am starting, when I will start considering the motion, that time I am taking initial time, and that time I am taking 0 time by using stopwatch. As the time goes on increasing, speed also goes on increasing. So one thing very important, that
whenever an object is dropped, that time velocity is 0. That time velocity is 0, but acceleration is not 0. You can understand very well. Here you see, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये स्टोन को नीचे क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है. ड्रॉप कर रहा है मीन्स दैट टाइम द इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी इज 0. whenever object is whenever anything is dropped from any certain height, that time we have to take initial velocity 0. हमें उस समय वेलोसिटी कितनी लेनी है, 0. और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता जाएगा, स्टॉप वॉच तुम्हारे पास है, टाइम इंक्रीज करता जा रहा है, माइक्रो सेकेंड में बढ़ता बढ़ता 1 सेकेंड होगा. 1 सेकेंड जैसे ही होगा उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इस ऑब्जेक्ट की या स्टोन की, एनीथिंग एनी ऑब्जेक्ट, 9.8 मीटर पर सेकेंड. This velocity is gained by this stone is due to acceleration due to gravity. ये जो ग्रेविटी मतलब इसकी जो वेलोसिटी बढ़ रही है वो ग्रेविटी के कारण बढ़ रही है. इसकी पूरी कॉन्सेप्ट मैं आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में समझाऊंगा. ठीक है, अभी सिर्फ तुम यही याद रखना कि इसकी जो वेलोसिटी बढ़ रही है, द रेस्पॉन्सिबल फैक्टर बिहाइंड दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो आप क्या देखोगे, 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड. फिर 2 सेकेंड अगर यहां से मेजर करोगे, स्टॉप वॉच से मेजर कर रहे हैं, 0 है, 0 से 1 होगा, 1 से फिर 2 होगा, फिर 3 होगा. सो 0 से 1 में इतना बढ़ा, फिर 1 से 2 में कितना बढ़े, मतलब इसके बीच का डिफरेंस तो 1 ही सेकेंड है, लेकिन वेलोसिटी का डिफरेंस भी कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 9.8. अब इन दोनों को माइनस करके देखो, 9.8 मीटर पर सेकेंड आएगा. और अगर आप यहां से मेजर कर रहे हो, मतलब 0 से 2 सेकंड तक होते होते, स्टॉप वॉच में 2 सेकंड होते होते उस समय तक वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 19.6 मीटर पर सेकंड. नाउ हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी. मान लो ये इंटरवल में मैंने निकालना है एक्सेलरेशन, तो हम कैसे निकालेंगे बताओ. वेलोसिटी इस समय कितनी है, वेलोसिटी है 19.6 और इस समय कितनी है, 9.8. सो दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस. So 2 minus 1 second, 19.6 minus 8, तो हम करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आया, 9.8 मीटर पर सेकेंड. So when object is released, that time velocity is 0, but acceleration is not 0. In the question it is given that write the condition at which the velocity is 0, but acceleration is not 0. So this is the condition. In the second question, the answer is in case of uniform circular motion, velocity and centripetal acceleration are perpendicular to each other. ठीक है, ऐसा एक कंडीशन होता है जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है, उस समय वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंशियल, और एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर. जैसा आप यहाँ देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10 का डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है. ठीक है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो. इसमें क्या है कि अर्थ है, ये एक ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट, ये सैटेलाइट है, ये गोल घूम रहा है. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टेंजेंशियल. यहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, इस पर रेडियस पर, ये रेडियस है और इस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होता है. इसके बारे में पूरी कॉन्सेप्ट आपको मैं नेक्स्ट, मतलब जब फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा तब आपको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बताऊंगा. अभी आपको सिर्फ यही याद रखना है, सेंट्रिपिटल फोर्स इज द फोर्स व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ. सेंट्रिपिटल फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट, सेंट्रिपिटल फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है. पूरा बताएंगे, आप टेंशन मत लो. ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन, सो दिस इज द एग्जांपल. You can write this answer, you copy it, okay, and you draw this diagram. In this case, the acceleration is toward the center and velocity is toward radius. So both are perpendicular to each other. So this is the condition for, this is the answer for second question of question number 9. You copy it and you draw this diagram. Okay, you copy it. Now in this question number 10, this earth and this satellite is given. Satellite is moving around a circular path having radius, this much radius. This is the earth and this is satellite and it is moving along a circular path. So time taken by satellite to one complete round is given as, it is given 24 hour. एक complete round में 24
आवर लगता है। सो व्हाट इज द एवरेज, मींस आपको निकालना है कि उसका स्पीड कितना हो, कितनी स्पीड से वो गोल घूम रहा है। सो स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहाँ सर्कुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो आप क्या लिखोगे, टोटल सर्कुलर डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सर्कुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक सर्कल में पूरा डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 2πr। ये याद रखना, एक सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2πr। और आपको क्या लिखना है, टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 24 आवर। यू हैव टू कमेंट मी द आंसर, आई विल नाउ you have to comment with the answer of this two question, no sorry this question, okay? So 2 you have to take pi value is how much, 22/7, 22/7. Now what is the value of r, r is given, first you solve this in kilometer per hour, okay? This you remove, okay, very easy. Now velocity is how much, 2πr, 2pi is 22/7, r is 42250 into time is 24 hour. So you will get the answer in kilometer per hour. How to solve this, first you multiply or cut, जहां तक कट होती है कट कर लो, और नहीं कट हो रही है तो क्या करो, है ना, क्या करना है आपको, इनको मल्टीप्लाई करना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर ऊपर से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तुम चाहो तो मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते थे, जो आंसर आएगा उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। सो बट प्रैक्टिकली वी आर यूजिंग किलोमीटर पर आवर फॉर फाइंडिंग द स्पीड। प्रैक्टिकली हम मीटर पर सेकंड नहीं निकालते, SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड। क्या करने बताया, वैल्यू पुट करना 2, पाई की वैल्यू 22/7 लेना, ठीक है, 3.14 मत लेना, 22/7 लिए, फिर r की वैल्यू किलोमीटर में था, किलोमीटर में ले लिए, जहां तक कट होगा कट करना, नहीं कट हो रहा तो क्या करो, इन सबको मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, और फिर मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को डिवाइड करो। 2 क्लास का क्वेश्चन है, एंड यू कमेंट विद द आंसर, यू हैव टू कमेंट मी इन बोथ किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड, ओके, थैंक यू।